Introductions to Goods and Services Tax. Goods and Services Tax is levied at a prescribed rate on every supply or either the sale of goods or rendering of the services, except the alcohol, liquor for human consumption and petroleum product. CGST, SGST, IGST. Three category of GST we have. Before that, we discussed something about the GST. GST is a value added tax because GST paid is set off against the GST collected. As a result, GST is on the incremental value of goods or services supplied. GST paid on the purchases of the goods and services is not at a cost for the purchaser but is an asset since it is can be set off against the GST collected on sales. Similarly, GST collected on the sale of the goods or services is not an income of sale but it is a liability. Now we are discussing about CGST, SGST and IGST. CGST is levied on the interstate state supply, means supply one state to another state. Okay, goods and services is levied at a half rate is prescribed. Now in the CGST case and SGST case, both are applicable. CGST and SGST both are applicable on the intrastate sale, and in the intrastate sale, CGST SGST is applicable of the half of the total rate. Just as total rate is 18%, so her 9% is the CGST and her 9% is the SGST. Okay, now integrated GST is levied on the interstate supply and of the goods or services, import of the goods or services in India and export of the goods from outside India. Integrated service outside the state. Okay. Now, which GST is levied on the supply? Having the discussions that GST are three types: CGST, SGST, ITGST, and where is the union territories, they are UTGST at the place of SGST is applicable. Okay, CGST and SGST is levied on the intra-state supply within the state supply of the goods or services. Whether the supply of the goods or services is intra-state will be depend on the place from where the supply is made and the place to which the supply is made. For example, if both the seller and purchaser of the goods or services are located within the same state, both CGST and SGST will be levied. IGST is levied on the interstate supply of the goods and services. Whether supply of interstate will also depend on the place from where the supply is made and the place of which supply is made. For example, location, seller is located in Delhi and the purchaser is located in Kolkata, then IGST will be levied. Reverse charge mechanism. Reverse charge mechanism. Certain purchases of the goods and services are placed under the reverse charge mechanism. It means the seller of the goods and services will not charge GST, but instead of the purchaser of the goods and services will deposit the GST in the government account and claim it is as input GST. GST, goods or services falling under the reverse charge mechanism are payment of fee to lawyers, payment for use of copyrights, purchase of the goods and services by the registered persons from unregistered person, transport of goods and insurance commission and sponsorship, like that. Okay, category of the GST for accounting purpose. GST paid input GST individually input CGST, SGST, IGST set off again the GST collected, that is output GST individually output CGST, output SGST and output IGST is prescribed order. Okay, it means the input CGST can be set off against the output CGST. Input SGST can be set off against the output CGST and input IGST can be set off against the output IGST. Now, it will be enable to enterprise to follow prescribed order of setting of each category of the CGST account. Input GST. अब now input GST is CGST paid on the intrastate supply and आप क्या है उसके बारे में नहीं सोचिए कि एक सेट ऑफ कैसे होगा, वो हमें देखना है. तो ऐसा है कि IGST है वो सिर्फ IGST से सेट ऑफ हो सकता है. SGST है वो SGST से भी सेट ऑफ हो सकता है, वो CGST से भी सेट ऑफ हो सकता है और वो IGST से भी सेट ऑफ हो सकता है. बट CGST जो है वो सिर्फ IGST से ही सेट ऑफ हो सकता है और CGST से ही सेट ऑफ हो सकता है. ओके, तो सबसे मिनिमम वाला जो है वो SGST किसी से भी सेट ऑफ किया जा सकता है और सबसे पहले हम उससे सेट ऑफ करेंगे, खुद से सेट ऑफ करेंगे.
CGST खुद से सेट ऑफ हो सकता है और IGST से हो सकता है, SGST से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। ऐसा समझो कि स्टेट है, सेंटर है, फिर बिगर, दोनों का बड़ा है, पिता है, ठीक है ना, तो फादर ऑफ बोथ। तो SGST खुद से सेट ऑफ हुआ, CGST से सेट ऑफ हुआ, नहीं तो फिर IGST से सेट ऑफ होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है GST की। GST पेड है, वो इनपुट GST है, तो GST पेड ऑन द परचेज। अब GST इनपुट GST क्या है? GST पेड ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। आई एम परचेजिंग दिस मोबाइल phone, that time I am paying some, okay, I have the mobile shop and I purchased some of the mobiles in the Blank and I pay some GST to the on the purchase of the goods and services. Okay, but I am collecting when I sell it, but now I have the input GST. This input GST I am paid to the government, and now when I sell the goods, that time I collect. How to do entry? GST paid on the purchase of the goods and services is an asset. मैंने जो कलेक्ट किया है, गवर्नमेंट को पे किया है, वो मेरी एसेट है। जैसे हमने किसी को, मैं किसी, कोई मेरा डेटर है, तो डेटर क्या होता है? जिससे हमें पैसा मिलने वाला होता है। ऐसे ही मैंने अगर गवर्नमेंट को दिया है और मैं कह रही हूँ कि मुझे कलेक्ट भी करना है, मतलब वो अमाउंट मुझे इन फ्यूचर कहीं ना कहीं से रिसीव होने वाली है, वो मेरी एसेट हो गई। ओके, तो इनपुट GST जो है वो मेरा एसेट है, एक्सेप्ट वेयर इट इज़ नॉट अलाउड टू सेट ऑफ। उस केस में ये एसेट नहीं होगा जब मुझे बताओ कि मैंने पे किया, लेकिन अगर मैं इसे कलेक्ट नहीं कर सकती, तब वो मेरे लिए, किसके लिए हुआ? ये कंज्यूमर के लिए। एज ए कंज्यूमर अगर मैंने एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है और मैंने जो GST पे किया है, मैं वो GST किससे भी कलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसकी फाइनल कंज्यूमर हूँ। तो उस केस में ये सेट ऑफ नहीं हो सकता है। अदरवाइज़ वो मेरी एसेट्स नहीं है, अदरवाइज़ वो मेरी एसेट्स है। अगर मैं बिजनेस पर्पज़ के लिए ले रही हूँ और मैं आगे किसी को सेल करने वाली हूँ और उस GST कलेक्ट करने वाली हूँ, और वो सिनेरियो जो है वो सेट ऑफ के सिनेरियो में आता है, कि कंडीशंस में आता है। ओके, सो वो सेट ऑफ हो सकता है, तब वो मेरी एसेट्स हुई। तो इनपुट GST एसेट्स को हमें क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। इनपुट GST डेबिट होगा, इनपुट GST अकाउंट डेबिट होगा। और अब वो इनपुट GST, अगर वो CGST है, SGST है, IGST है, तो ये अकाउंट्स क्या होंगे? डेबिट होंगे। अब GST कलेक्टेड, जैसा सिनेरियो में समझ में आया, एक एसेट्स है तो दूसरा हमारा लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है, एज अ होलसेलर अगर मैंने GST पे कर दिया था, अब मैंने कलेक्ट किया है, तो ठीक है, बट एज अ लाइबिलिटी कैसे हुआ ये मेरा? लाइबिलिटी ऐसे हुआ कि GST जब मेरे को कलेक्ट करना है सेल पे, ठीक है ना, तो लाइबिलिटी इज़ अकॉर्डिंग टू क्रेडिटेड टू द आउटपुट GST, क्योंकि ये GST मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज मैंने क्या करना है? इसे अपनी लाइबिलिटी अकाउंट में डालना है, क्योंकि उससे मुझे सेट ऑफ करना है ना फिर। तो आउटपुट GST, आउटपुट CGST, SGST और IGST, ये सब क्या हो गए? मेरे लिए लाइबिलिटी क्रेडिट अकाउंट्स हो गए। इट मीन्स मेरी एसेट्स जो हो गई वो इनपुट GST और मेरी लाइबिलिटी जो है वो आउटपुट GST। इनपुट GST इसलिए मेरी एसेट्स है क्योंकि फ्यूचर में मुझे पैसा रिसीव होने वाला, और आउटपुट GST इसलिए मेरी लाइबिलिटी है क्योंकि मुझे मैं इसे गवर्नमेंट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है ना। तो जितना मुझे गवर्नमेंट को पे करना मैं पे करूँगी, अदरवाइज़ मेरे पास सेट ऑफ होकर रहने वाला है। ऑर्डर फॉर सेटिंग ऑफ द IGST, जो मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ कि इनपुट पेड IGST रखा हुआ है, तो वो किसके अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता है? आउटपुट IGST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST के, इन दैट ऑर्डर। कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस इनपुट IGST एंड देन, ठीक है, इनपुट अगर CGST का है तो अगेंस्ट द CGST और IGST, लेकिन SGST का है तो वो SGST और IGST में ही सेट ऑफ हो सकता है। ओके, अकाउंटिंग फॉर द GST पेड। अब GST पे करने का, ये तो आपने GST कलेक्ट करके या ड्यू करके रख लिया है। पेमेंट के समय, एट द टाइम ऑफ पेमेंट दिस GST टू द गवर्नमेंट, विच एंट्री यू डिड इन योर अकाउंट, विच एंट्री यू विल डिड इन योर अकाउंट्स। तो व्हेन द GST पेड ऑन द सप्लाई एसेट्स, और ये सप्लाई है परचेज करते समय एसेट्स को अगर आपने GST पे किया है तो आप क्या एंट्री करेंगे? GST पेड is an asset for the enterprise when GST paid can be set off against the GST collected. GST paid on purchase of the goods and services that can be set off against the GST collected is debited into the input GST under the CGST, SGST, IGST as per the category account. Therefore, accounting for GST paid on the purchase of the goods and services will be differ depending on whether the GST paid can be set off against the GST collected or not. मतलब आपने जो GST पे किया गवर्नमेंट को, क्या उसके लिए आपने पहले से कोई एंट्री
कर रखी। एंट्री करने का मतलब ये है कि आपको वो कलेक्ट होने वाला है, वो सेट ऑफ होने की कंडीशन में है या नहीं है। When the GST is paid on the purchase as a cost, अगर वो cost है आपकी, GST paid is a cost when input credit for the GST paid is not allowed to be taken and cannot be set off against the GST collected. In such cases, GST paid on purchase of the goods and services that cannot be set off against the GST collected is debited in the account where the transaction is debited. For example, Mohit visits restaurant and paid the rupees 1200 inclusive of the CGST rupees 100 and SGST rupees 100. GST is paid for the food beverage will not allowed to be set off against the GST collected. It means that Mohit should business promotions account by 1200 रुपीज़। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम ड्यूरिंग द बिजनेस लेते हैं लेकिन उन्हें सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। फूड बेवरेज एक्सपेंसेस हो गए, जैसे रेस्टोरेंट का बिल हो गया, हमने कहीं मीटिंग रखा है, मीटिंग हमने किसी रेस्टोरेंट में होटल में रखा है, वहाँ पे फूड बेवरेज का एक्सपेंसेस हुआ है। एट द टाइम ऑफ पेइंग द bill of that restaurant and hotel we are paying the GST also. That GST we can't be set off against whatever GST we are collected on our business transactions. नेक्स्ट हो गया मेंबरशिप फीस ऑफ द क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर्स, ये सारा को रिलेटेड सेम इसी मैनर में है। आपने मेंबरशिप ले रखा है, आपने फिटनेस सेंटर्स या हेल्थ क्लब किससे आप कनेक्टेड हैं और आप मेंबरशिप फ़ीस पे करते हैं। मेंबरशिप फ़ीस पे करने पे GST पे करना पड़ता है उसके साथ। अब वो GST जो है आपने पे की, जो भी सिनेरियो रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कहीं एग्जाम्पशंस भी मिलती हैं, तो आपने जो भी GST पे किया है उस समय वो GST भी आप अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन वाले GST कलेक्टेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ऐसे रिपेयर्स मेंटेनेंस हो गया, फ्री गिफ्ट्स टू स्टाफ हो गया, परचेज ऑफ द व्हीकल्स बाय नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइजेज हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज पर्सनल कंजम्पशन हो गया, एंड गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज फॉर सेल फॉर एग्जाम्पशंस फ्रॉम द लेवी ऑफ GST हो गया। मतलब ऊपर वाले एग्जाम्पल तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ रहे हैं कि हमने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स नहीं किए हैं, ये बिजनेस से आउट ऑफ हमने कोई एक्सपेंसेस किया और उस पर अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए उसके लिए GST पे किया है, तो हम उस पर नहीं टैक्स मतलब उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट वाला जो था समझ में आया नहीं आया हूँ, मैं बता देती हूँ आपको। ऐसा जहाँ एग्जाम्पशन है, GST लेवी ही नहीं होता है, वो सिनेरियो से बाहर है कि GST जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर GST के सिनेरियो से बाहर है तो GST आपने उस पर कलेक्ट ही नहीं किया है, तो जब आप उसे पे कर रहे हो मतलब आपने उसकी परचेज पे किया भी है, GST एग्जाम्प्ट है वो कंजम्पशन से, तो आप उसे सेट ऑफ कैसे कर सकते हो। ठीक है, GST पेड इज़ रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। किस किस केसेस में रिवर्स्ड है, तो गुड्स लॉस्ट और स्टॉलन के केस में आपको रिवर्स हो सकता है, मतलब मिल सकता है वापस। गुड्स डिस्ट्रॉय के केस में, गुड्स रिटर्न ऑफ के केस में, गुड्स गिवन एज गिफ्ट, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैम्पल मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी है वो रिवर्स्ड है। सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एग्जाम्प्ट, कौन कौन सी सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एग्जाम्प्ट है GST के सिनेरियो से? सैलरी और वेजेस पे GST नहीं लगता है, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज टू द गवर्नमेंट नहीं लगता है, सप्लाई टू द एम्बेसीज टू अदर कंट्रीज, UNO, एजुकेशनल सर्विस, हेल्थ सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स। ऐसा क्यों बोला है? ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पशंस हैं, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 अबाउ जो है वो ऐसी हैं एग्जाम्पशंस हैं हमारे जिन पे GST नहीं लैवी होता है, लेकिन वो हमें पढ़ने का नीड नहीं है, क्योंकि हमें अकाउंट्स के पर्पज़ से ये बेसिक एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे नज़र आते हैं हमें अपनी ट्रांजेक्शन्स के अंदर। बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन हमें जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं अभी हमारी अकाउंट्स के अंदर, उसमें ये एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं, इनमें से एक एक्सपेंसेस, दो एक्सपेंसेस। तो हमने इसलिए स्पेसिफिकली इस लिस्ट को रीड आउट कर लिया है ताकि जब भी एक्सपेंसेस आए हमें पता चल जाए कि यहाँ पे GST नहीं लगता है। तो यहाँ पे जब भी हम GST का सेटलमेंट करना है तो हमें उसके लिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि GST से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। क्योंकि दोनों ही केस में जहाँ GST के लिए एक है आप सेट ऑफ कर सकते हो, एक कंडीशन आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। जब आप सेट ऑफ कर सकते हो तो किसके अगेंस्ट क्या सेट ऑफ हो रहा है, जब सेट ऑफ नहीं कर सकते हो तो सिंपल एक एंट्री होगी। तो ये चीज़ें आपको नोन होना ज़रूरी है पहले अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले। अकाउंटिंग एंट्रीज़ की बात करते हैं हम। अकाउंटिंग एंट्रीज़ जो हैं, एग्जाम्पल ऑफ द एंट्रीज पास्ट फॉर अकाउंटिंग ऑफ द GST पेड और कलेक्टेड। ओके, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। आप फिक्स एसेट्स अगर परचेज कर रहे हैं और उस पर आपने GST
कैसे क्या एंट्री करनी है। फिक्स एसेट्स अकाउंट आपका डेबिट होगा, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि वर्ड परचेज लिखा हुआ है और परचेज के साथ कौन सा जीएसटी आता है, इनपुट जीएसटी आता है। तो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। क्यों हमने इनपुट, क्योंकि इनपुट जीएसटी क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है जो इन फ्यूचर हमें रिसीव होने वाली होती है, कलेक्ट होने वाली है। अगर वो कलेक्ट नहीं होने वाली है तो हमारी एसेट्स ही नहीं है, वो सिनेरियो से ही बाहर है। मतलब अगर मैं फाइनल कंज्यूमर की तरह पे कर रही हूँ जीएसटी परचेज के समय, तो वो मेरा सेट ऑफ नहीं होगा। उसके लिए मुझे, और फाइनल कंज्यूमर का डेली रूटीन लाइफ में एंट्रीज करता है, डेली में इतनी चीज़ें परचेज करता है, इतनी चीज़ें कंज्यूम करता है थिंग्स, और उन सारी थिंग्स पे जीएसटी लगा होता है। नो ओके। तो अभी हम फिक्स एसेट्स का बात कर रहे हैं कि फिक्स एसेट्स अगर परचेज की तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा, इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा, इनपुट आईजीएसटी भी डेबिट होगा। ठीक है, आपको नोन है सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, फिर दोनों नहीं लगते हैं तो आईजीएसटी लगेगा। टू द वेंडर्स अकाउंट क्यों किया है, टू द वेंडर्स अकाउंट किया है, टू द कैश करो, आपकी चॉइस है। बीइंग अ मशीनरी परचेज इनपुट सीएसटी और एसजीएसटी आपको क्लेम करना है, ठीक है ना। तो आपने ड्यू करके रख दिया, हाँ ये फ्यूचर में हमें रिसीव होने वाला है। अब जब रिसीव होगा हम इसे सेटल करके सेट ऑफ कर देंगे पूरा, ठीक है। तो ना एसेट्स रहेगी ना लाइबिलिटी साइड कुछ रहेगा हमारे पास। जनरल एंट्री फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, ये फिक्स एसेट्स के लिए था। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, सेम वही एंट्री होगी हमारे पास। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी टू क्रेडिटर्स। ओके, कैश होगा, आप कैश लिखेंगे, वेंडर होगा, आपने ऑब्वियसली अगर आपने कैश में नहीं लिया है तो आप वो लिखेंगे। जनरल एंट्री फॉर द सेल ऑफ गुड्स, अब आप सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी की जो आपने कंज्यूमर से लिया है वो आप गवर्नमेंट को देना है ना। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। अभी आप ये सिनेरियो से बाहर हो जाओगे गवर्नमेंट को कब देना है, क्योंकि वो सेपरेट टॉपिक है टैक्स के अंदर, वो आपके काम का नहीं है कि आपको गवर्नमेंट को कब पे करना है, आपको सिर्फ एंट्री करनी है। जनरल एंट्री फॉर द सेल ऑफ गुड्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स अकाउंट क्यों डेबिट किया है, हम नॉर्मली सेल की एंट्री कब क्या करते हैं, जब हमें कैश रिसीव नहीं होता है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू जो चीज़ सेल की है, फिक्स एसेट सेल किया तो डेटर्स टू फिक्स एसेट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स, यही करते हैं हम। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, जब हमने गुड्स सेल किया है, गुड्स सेल कर रहे हैं और डेटर क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन टू सेल के साथ नीचे और कौन की अमाउंट हमें सेल में रिसीव होने वाली है, हमें सिर्फ सेल अमाउंट रिसीव होगा नहीं, हमें सेल की जो रिसिप्ट है, बिल है, उसके अंदर हमें सेल का अमाउंट रिसीव होगा, हमें आउटपुट सीजीएसटी है और एसजीएसटी रिसीव हो सकती है, एंड हमें आउटपुट आईजीएसटी रिसीव हो सकता है। तो हम लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। जनरल एंट्री फॉर द परचेजेस रिटर्न, जनरल एंट्री फॉर द परचेजेस रिटर्न हम क्या करने वाले हैं, परचेजेस रिटर्न के लिए। अब सपोज करो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों होगी है अकाउंट्स के पर्पज़ से। देखो हमने पहले लिया, पहले तो एक सिंपल एंट्री में आती नहीं थी, अब जीएसटी और आ गया। परचेज़ किया था तब आपने एंट्री क्या किया थी, आपके पास एसेट्स आई थी, आपने क्या बोला था, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अच्छा, गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कर दिया, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न तो आ गया। तो जब आपने परचेज किया था तो आपने कुछ और भी डेबिट किए थे, क्या, इनपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी, तो उन सबको भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, जितनी परचेज रिटर्न हुई उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने सारी परचेज रिटर्न तो की नहीं है। आप कुछ सपोज करो 1000 यूनिट्स थी, 1000 में से 200 डिफेक्टिव निकल गए, आपने 200 रिटर्न किया है, तो 200 के अकॉर्डिंग जो आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी होगा वो रिटर्न करेंगे, तो वही अमाउंट वहाँ शो होगा। ठीक है, इन केस ऑफ द परचेज रिटर्न, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अकाउंट इज क्रिएटेड बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेज of the goods and services input GST और accounts are debited. ओके, अब ये हुआ जनरल एंट्री फॉर द सेल्स रिटर्न। जैसे परचेज रिटर्न हमने किया वैसे हम सेल्स रिटर्न भी कर सकते हैं। आपने मैन्युफैक्चरर से कुछ प्रोडक्ट लिए, लेकिन आप होलसेलर हैं, आपको लगा कि अरे मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट तो दिए लेकिन इसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डैमेज्ड है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, और मुझसे आगे कोई रिटेलर या अगर मैं डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करूँगा तो वो नहीं लेने वाले मुझसे। आपने इसे सेल रिटर्न कर दिया। अब आपने जब इसे सेल रिटर्न किया, आपने जब इसे परचेज़ की थी, आप समझो आपने जब परचेज़ किया था, सॉरी
सेल रिटर्न कर रहे हो, तो जब मैंने आपको सेल हुआ था तो आपको क्या मिला था, सेल अकाउंट, आपको पैसा मिला था, पैसा नहीं मिलेगा तो डेटर्स होंगे आपके। अच्छा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और टू के साथ आपने लगाया था टू आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी। तो अब इन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू डेटर्स अकाउंट। ये तो हो गई बिल्कुल ईजी गोइंग एंट्रीज। इन केस ऑफ द सेल्स रिटर्न ये होने वाला है आपके साथ। अब एक छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, इन पे भी आपको इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इनपुट जीएसटी तो क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन क्या ये जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस के अगर नहीं हुए तो वो सेट ऑफ होंगे, नहीं होंगे। तो उस सिनेरियो में देखो मैं बता देती हूँ, जब आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आप राइट करो तो ऑब्वियसली आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन ही आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं। तो ये जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड जनरल एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, ओके, तो ये सारे एक्सपेंसेस है डेबिट होंगे, क्योंकि इनकी वजह से आपकी इनकम का लॉस हो रहा है, आपकी मनी जा रही है। ओके, तो मनी जा रही है तो आप टू कैश और टू बैंक करेंगे और ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे। इन एक्सपेंसेस को डेबिट करते समय आप क्या करेंगे, अपना इनपुट जीएसटी और आउटपुट इनपुट एस जीएसटी वो भी डेबिट करेंगे। मैम अब ये तो हम रिकवरी नहीं करेंगे, जैसे सेल ऑफ परचेज ऑफ और सेल ऑफ गुड्स था, हमने गुड्स परचेज किया और फिर मार्केट में सेल कर दिया, तो वहाँ से तो हमें कलेक्ट हो रहा था। लेकिन एक्सपेंसेस जो हम कर रहे हैं वो तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ये तो एज अ प्रमोशनल एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये हमें वापस रिसीव नहीं होने वाले। फिर हमें इस पर इनपुट जीएसटी और एस जीएसटी को डेबिट इसलिए किया बेटा, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस आपकी कॉस्ट का पार्ट बनने वाले हैं, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस ऐड होने वाले हैं कॉस्ट ऑफ द गुड्स परचेज्ड में, और उसके बाद आप अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड करने वाले हो। तो ये सारे जीएसटी, इनपुट जीएसटी, एस जीएसटी जो भी है एज ए एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस पे टैक्स पे किया है तो वो सारे भी हमारे एक्सपेंसेस का एज एक्सपेंसेस डेबिट होने वाले हैं। ठीक है। जनरल एंट्री फॉर ड्राइंग ऑफ द गुड्स बाय पार्टनर, गुड गिवन एज अ फ्री सैम्पल, और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, गुड्स स्टॉलन हो गया है। सारे ही केस में अगर पार्टनर ने कोई गुड्स निकाल लिया है, ड्राइंग कर लिया, ले लिया, फ्री सैम्पल आपने किसी को दिए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है ना, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट है, टू परचेजेस, टू CGST, टू इनपुट्स SGST, टू इनपुट IGST। क्यों ऐसा हुआ, आपने निकाला गुड बिजनेस से, तो उस गुड पे जो आपने टैक्स पे किया था वो भी निकलेगा। ऐसा तो नहीं कि आप टैक्स, ऐसा तो हो जाएगा फिर आप परचेज़ करोगे, आप बल्क में परचेज़ करोगे, आपका इनपुट लगा हुआ है, इनपुट GST, IGST, CGST, SGST अकाउंट में रखा हुआ है, और आप वापस गुड्स को बिजनेस में से निकाल के पर्सनल यूज़ ले लोगे, तो इससे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल यूज़ में लेने का तो कोई सेट ऑफ मिलता नहीं है और आप यहाँ पे सेट ऑफ करा रहे हो उसे। ठीक है, तो इसलिए हम उसे वापस क्रेडिट कर देंगे। सेटिंग ऑफ द इनपुट CGST अगेंस्ट द आउटपुट CGST, तो इस सेटिंग ऑफ की एंट्री बिल्कुल क्लियरली आपको, जैसे हम रेक्टिफिकेशन में करते थे, आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, क्योंकि जो हमारा एसेट्स था हम उसे लाइबिलिटी नहीं करेंगे, और जो हमारी को एज अ रिसीव हुआ है सेल में वो हमारी, उसे हम डेबिट करना पड़ेगा ना। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट CGST अकाउंट, सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेन आउटपुट IGST, सेम वही है हमारा आउटपुट, मतलब आउटपुट वाला जो भी GST होगा अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट GST अकाउंट। ठीक है, अब सिनेरियो यहाँ नहीं, सिनेरियो यहाँ काम आता है कि मैम जिसके अगेंस्ट में जो सेट ऑफ, हाँ तो आप जिसके अगेंस्ट में, अगर आप आउटपुट CGST के IGST के अगेंस्ट में SGST सेट ऑफ करते हैं तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इनपुट्स, मतलब जिसे आप सेट ऑफ कर रहे हो, जिसे आप एसेट्स की एसेट साइड से हटा रहे हो उसे क्रेडिट कर दो, और जो लाइबिलिटी आपके पास क्रिएट हुई पर रखी है उसे सेट ऑफ करो, और फिर उस बैलेंस जो है वो गवर्नमेंट को पे करो। अब ये सब तो हो गया, हमें पेमेंट करना है GST का। ठीक है, जो क्रेडिट बैलेंस है एक तो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट GST, SGST जो भी आपके पास रहा। उसके बाद पेमेंट ऑफ द GST अकाउंट कैसे होगा, आप पेमेंट करना है। अब आपने क्या किया था, अपनी एसेट्स जो थी ना उन सबको लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर दिया था,
फिर भी आपके एसेट्स अकाउंट में कुछ बचा हुआ है, तो अब जो भी बचा हुआ है ना, आपने अपनी लाइबिलिटी से पेमेंट करने के बाद भी अगर आपकी एसेट्स में कुछ बचा हुआ है तो वो आपका बैंक बैलेंस है। और सपोज, ठीक है ना, इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आई जीएसटी टू बैंक। क्यों? यहाँ से आपने कैश बैलेंस किया और वहाँ से आपको आउटपुट सेट हो गया। थैंक यू।